गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था इमूवेबल जॉइंट्स, साइलेंटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्री मूवेबल जॉइंट्स। फ्री मूवेबल जॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। उसके जो टॉपिक्स हैं फ्री मूवेबल जॉइंट्स के, joints are divided into 6 categories. Free movable joints. Okay, first, gliding joints. Gliding joints, these are permit gliding movements only between carpal bones or wrist. Carpal bones जो होती है wrist and ट्रेशल बोन्स आर एंकल। इन दोनों को जो जॉइंट्स दोनों को कनेक्ट करती है उस जॉइंट को हम ग्लैंडिंग जॉइंट्स कह सकते हैं, जिसमें रिस्ट एंड एंकल। ओके, सेकंड जो है इसका हिंग्स जॉइंट्स। हिंग्स जॉइंट्स जिसमें एज ए डोर को जैसे अपन ओपन करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, वैसे ही ये वर्क करता है। जस्ट लाइक एल्बो, नी, एंकल, ये जो भी जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर वो हिंग्स जॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, थर्ड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है वो शोल्डर को हम ले सकते हैं, शोल्डर जॉइंट्स। ये जो हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, दिस जॉइंट्स हैव ए एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस एंड ए पिवोट मूवमेंट्स। ओके, थर्ड, शटल जॉइंट्स। शटल जॉइंट्स the permit a great freedom of movements. Joints of thumb, it enables the thumb to oppose the finger. Okay, शटल जॉइंट्स जो हैं थम्स जॉइंट्स कहलाते हैं। थर्ड है पिवोट जॉइंट्स। नेक जॉइंट्स, नेक की जो बोन्स होती है इसमें जो जॉइंट होता है उसको हम पिवोट जॉइंट्स बोल सकते हैं। दिस आर द जॉइंट्स विथ ए रोटेरी मूवमेंट्स, जो रोटेट हो सकता है एक्सिस पे। वन एक्सिस होता है इसमें रोटेट, ये मूवमेंट होता है। ओके, ए रिंग वाइज रोटेट अराउंड पिवोट। ए पिवोट लाइक प्रोसेस रोटेट बिटवीन ए रिंग। गोल सर्कल की जैसे ये रिंग की जैसे ये रोटेट हो सकता है, इसको हम पिवोट जॉइंट्स कहते हैं। ओके, नेक जॉइंट्स। नेक्स्ट है कॉन्ड्रिलॉइड जॉइंट। कॉन्ड्रिलॉइड जॉइंट्स बोन्स इन द प्लेन ऑफ द हैंड। जो हमारा जो एंकल और जो हैंड्स को जो है, फिंगर्स को जो है वर्क करवाती है, मूवमेंट्स करवाती हैं, उसको हम कॉन्ड्रिलॉइड जॉइंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं उसके ये टाइप थे। ओके, उसके अलावा आगे आता है जो टॉपिक मस्कुलर सिस्टम। ओके, टॉपिक थर्ड है ये चैप्टर 8 का, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स,
सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि क्या इसकी डिफ़ाइन है. ओके. Definitions of muscles. Muscle is the tissue's component of fiber capable to effect bodily movements, or muscles is the body tissue that can contract to produce movements. Okay. Muscle cells are also called muscle fiber. These are the basic unit of the our muscles. Human beings have three types of muscles: skeleton muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Skeletal muscles are called voluntary muscles because these muscles are under our conscious control. Various smooth muscles are called involuntary muscles because these are not under our control. These muscles are found in the wall of our blood vessels and in our hollow visceral organs such as stomach, urinary bladder, and respiratory passage. Uh, these properties are below. First, extra ability. Extra abilities, the abilities of a muscles to active if the extra ability of the muscles is greater, its force, velocity, and endurance will also be greater. And next, contractility. Muscles. Contractility is the ability of the muscles to shorten forcibly when it is simulated adequately. The muscles changes in shape when stimulated. Shortened forcibility when it is stimulated adequately. Okay. थर्ड जो है इसका टॉपिक एक्स्ट्रेबिलिटी, इलेक्सिलिटी, इलास्टिसिटी. एक्सटेंसिबिलिटी. Extensibility is the ability of the muscles to be stretched or intended. The muscles fiber shorten while controlling, but they can be stretched. Then beyond their resting length when related. If muscles tissues cannot stretch, you would not have the mobility you have. Fourth, elasticity. Elasticity is the ability of the muscles
muscle tissue to return to normal resting length, to return to its normal resting length and shape after being stretched. If the muscles tissues does not have elasticity, if would remain as it is stretched length, यानी इसमें जो है इलास्टिसिटी होती है जिसमें हम इसको मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना भी हम उसको में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेच करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इम्प्रूव होगी। तो इसमें बताएगा कि किस प्रकार से ये जो मसल्स के हैं इसमें टाइप्स, उसमें जो लेंथ और शेप्ड है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच के अकॉर्डिंग वो नॉर्मली रेस्टिंग होती है। ओके, तो ये मसल्स के ये 4 टाइप्स में बताए गए हैं किस प्रकार से इसमें ये मसल्स की जो हैं हमारी बॉडी को के अंदर ये होते हैं। और जो बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो 650 टाइप्स के मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 40% जो है वेट जो होता है वो मसल्स का होता है। 40% बॉडी के अंदर जो वेट होता है वो मसल्स का होता है। ओके, और 650 टाइप्स की हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मसल्स, ये हमने इसकी जो है पहले हमने इसकी जो मसल्स के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल्स की। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब इसके जो हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। वॉलेंटरी स्केलेटन मसल, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो मसल्स के जो हैं इसके जो टाइप्स हैं वो हैं स्केलेटन मसल्स और स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ओके, ये मसल्स होते हैं इसमें। वॉलेंटरी मसल्स के अंदर में बताइए आपको कि मसल्स वर्क अंडर आवर कंट्रोल, दीज मसल्स अटैच टू बोन्स, वॉलेंटरी स्केलेटन्स में। दूसरा आता है जो इनवॉलेंटरी ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल बट वर्क ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक मसल्स फाउंड इन लिविंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैकिंग। ओके, कार्डिक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। ओके, तो ये 3 टाइप्स की मसल्स जो होती हैं बॉडी के अंदर, ये इस प्रकार से ये हमारी बॉडी में फंक्शंस करती है। अब आती है फंक्शंस ऑफ मसल्स कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर और मसल्स का क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। गिव शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के अंदर शेप और स्ट्रक्चर्स जो हैं किस पर डिपेंड करता है, मसल्स पे। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू बोन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को और जो हमारा जो बोन्स होती है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, मसल्स। थर्ड, हेल्प इन फ्लूइड मूवमेंट्स, फ्लूइड मूवमेंट्स यानी स्पीड जो बॉडी को देती है वो मसल्स देते हैं। प्रोवाइड इफोर्ट एंड ब्रिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, एंड नेक्स्ट ब्रिंग्स एक्टिव लाइफ। ये जो हैं फंक्शंस होते हैं मसल्स के। सबसे बड़ा जो रोल होता है मसल्स का वो होता है शेप एंड स्ट्रक्चर्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्शंस आवर बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, तो ये जो हैं मसल्स के बेनिफिट हैं, फंक्शंस हैं। सेकेंड, स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल। जैसे मैंने बताया था कि आपको मसल्स टिश्यूज कॉन्ट्रैक्टिव्स 40 to 50% of body weight of an individuals and
मसल्स स्टडी मसल्स ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंदर में जो है मसल्स की स्टडी की जाती है, इसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। ओके, एवरी मसल्स फाइबर मेड अप ऑफ वेरी large number of microscopic threads called myofibril. Myofibril. Each myofibril consists of protein molecules called actin and myosin, and length of each fiber varies from 3 mm to 4 centimeter, and thickness varies of 0.01 mm to 0.1 mm. Every fiber has its own cell. It contains a liquid called सार्कोप्लाज्म। ओके, तो ये जो है मसल्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या इसकी लेंथ होती है, कितना इसका वेट होता है, क्या इसमें किसके द्वारा इसमें स्टडी होती है, ये सारा जो है मसल्स के हम बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो में टॉपिक होगा वो 8.4 होगा। ओके, आज इतना ही। ओके।